जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Welcome all of you all for today's session of our Mantra of Life course. So today we are discussing this topic called practical application of Bhagavad Gita in our daily life. How do we apply Gita in our daily life? So this session is a very important session. So so please pay attention in this session. So we will see some very practical things how we can apply Gita in our life. Because the philosophy of Gita is just not to be read, but it is meant to be applied. So philosophy is meant for application and transformation. So therefore, this session is very important. Bhagavad Gita itself is the essence of all Vedic scriptures, right? And this session and a journey of self-discovery course or the mantra of life course is the essence of the Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is the essence of the Vedas. The journey of self-discovery course is an essence of the Gita, and this particular session, practical application of Gita, is the essence of the journey of self-discovery or the mantra of life course. So please pay attention in today's session. Just 1 second. Yeah. So just a summary of what we have been discussing. Generally, we do this into 6 subtopics. We do 6 sessions, but we are giving you all in a short in 4 sessions. And probably if there is time in future, if all of you all are interested, we can do another 2 sessions also. So generally we have 6 sessions: search for happiness, who am I, does God exist, one God or many gods. Then we have why do bad things happen to good people, and then practical application of Bhagavad Gita. So just a quick summary of what we have been discussing. Who am I? I am not this body, but I am a spirit soul entrapped in this temporary material body. So we discussed this who am I session yesterday, correct? So then where do I come from? So the scriptures explain. We couldn't get into the detail of this particular topic, but there is time later we can discuss on this. So we discussed yesterday that how we are all spirit souls, right? Atma. So where does Atma come from? Atma comes from the Adhyatmic Jagat or the spiritual world. So we all come from the spiritual world. We were all once with God. And what is that spiritual world? A place where there is no birth, no death, no old age, no disease. A true home. Sorry, I'm supposed to speak in Hindi. तो हम सब आत्मा है और हम सब भगवत धाम से आए हैं. और ये भगवत धाम क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है. तो हमने पहले सेशन सर्च फॉर हैप्पीनेस में देखा कि कैसे ये दुनिया में अलग अलग समस्या होते हैं. जैसा अभी कोविड का एक समस्या है, बीमारी है, इतना भयंकर बीमारी है, सब लोग डरे हुए हैं, घर में बैठे हैं. पर आध्यात्मिक जगत में ये सब बीमारी नहीं होता. नो डिजीज, नो बर्थ, नो डेथ. मृत्यु भी नहीं होता. मृत्यु से कितना भय लगता है, पर वो जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे मृत्यु भी नहीं. वो हमारा सही घर है. तो हम वो घर छोड़ के ये दुनिया में आए हैं. और ये दुनिया क्या है? मटीरियल वर्ल्ड. ये भौतिक दुनिया को कृष्ण बोलते हैं दुक्खालयम अशाश्वतम. गीता में वर्णन आता है पूरे दुख से भरा है और नश्वर है, टेम्पररी है. तो इसलिए ये दुनिया में सुख बहुत कम मिलेगा, दुख बहुत ज्यादा मिलेगा. सो वी आर ऑल इन दिस मटीरियल वर्ल्ड. तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं? तो इसका भी हम डिटेल में एक सेशन करते हैं. व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, उसका डिटेल में वर्णन होता है. जस्ट 1 मिनट. Yeah. So why do we come in this material world? Because I chose to be independent of God. क्योंकि हम भगवान से स्वतंत्र भोग करना चाहते हैं.
तो ये दुनिया में हर एक व्यक्ति स्वीकार करे न करे, हर एक व्यक्ति भगवान के साथ कॉम्पीट कर रहा है। हर एक व्यक्ति को भगवान बनना है, भोक्ता बनना है, एन्जॉयर बनना है। तो इसलिए ही भगवान ने ये दुनिया बनाया है और ये दुनिया एक कैद खाने की तरह है, एक प्रिज़न हाउस। प्रिज़न हाउस में क्या होता है, जो कैदी हैं उनको थोड़ा सज़ा मिलता है। पर सज़ा किसके लिए मिलता है? रेक्टिफिकेशन, ताकि वो सुधर जाएँ और फिर से गलती न करें। तो हालाँकि ये दुनिया में कष्ट हैं और बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न रहता है, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? है कि नहीं? दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाई? क्या तेरे मन में समाई? ये गीत भी है, राइट? हे भगवान, ये दुनिया क्यों बनाया आपने इतने कष्ट के साथ? क्योंकि भगवान हमको अवसर देते हैं, ताकि हम सुधर जाएँ। जैसे बच्चा घर में पढ़ाई नहीं करता, तो माता-पिता क्या करते हैं, बच्चे को ट्यूशन टीचर के पास भेजते हैं और वो भी कड़क ट्यूशन टीचर। क्यों? क्योंकि बच्चे के हित के लिए, सो दैट ही लर्न्स हिज लेसन्स। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम हमारा लेसन सीख रहे हैं। और लेसन क्या है कि क्योंकि हम भगवान को छोड़ के दुनिया में आए हैं, इसलिए इतना कष्ट है। और जब वापस भगवत धाम जाएंगे भगवान के पास, हमारे सब कष्ट मिट जाएंगे। सो वी आर ऑल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। व्हाई डू आई गेट डिफरेंट बॉडीज? हमको अलग अलग शरीर क्यों मिलते हैं? जैसे शास्त्र में वर्णन आता है 84 लाख योनि, 84 लाख स्पीशीज। तो इसका भी डिटेल में एक सेशन होता है, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो उसका ये वर्णन हम डिटेल से उसमें करते हैं। पर बेसिकली डिजायर्स क्रिएट एक्शंस। इच्छाओं की वजह से कार्य करते हैं, कार्यों का अलग अलग फल मिलता है और वो फल की वजह से अलग अलग शरीर मिलता है। 84 लाख स्पीशीज। हाउ लॉन्ग दिस विल गो ऑन? मिलियंस ऑफ लाइफ वी हैव लिव्ड, millions of good and bad things we have done, and millions of reactions are in store for us. हमने अभी बिताया है, तो ये जिंदगी अलोन जिंदगी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने अभी जन्म लिया है, बहुत सारे जन्म हम लेते आए हैं। भले ही भूल गए होंगे, पर ये जन्म चलता रहता है। इसलिए हमने बहुत सारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म किए हैं, तो इसलिए बहुत सारा फल भी बाकी है हमारा। तो हमको क्या करना है अभी? व्हाट शुड आई डू नाउ? वी हैव दिस मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट। तो हमारे पास सबसे बड़ा गिफ्ट है, उपहार है भगवान का। वो क्या है? मनुष्य शरीर। ये जो मनुष्य शरीर है बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो हमने देखा फर्स्ट सेशन में, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशुभि समान। कि आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु भी करते हैं, पर मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म का पालन करने के लिए। सो ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ ट्रेन जंक्शन। जैसे ट्रेन जंक्शन क्या होता है? बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन होता है जहां पे अलग अलग ट्रेन आते हैं। तो इसलिए अगर कोई बैठा है ट्रेन में जो गोवा से बॉम्बे जा रहा है और उसको बीच रास्ते में उसको लगता है नहीं मुझे बॉम्बे नहीं जाना है, दिल्ली जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रेन जंक्शन के लिए रुकना पड़ेगा, हुबली जंक्शन या एक ट्रेन जंक्शन के लिए रुकना पड़ेगा। और वो जंक्शन में बॉम्बे के ट्रेन से उतर के दिल्ली के ट्रेन पे चढ़ सकता है। तो ये मनुष्य जिंदगी एक ट्रेन जंक्शन की तरह है। और इसमें हमको चुनाव मिलता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, अलग अलग ट्रेन हैं, दिल्ली का, बॉम्बे का, कलकत्ता का, अलग अलग ट्रेन है। तो वैसे मनुष्य जिंदगी एक ट्रेन जंक्शन की तरह है और यहाँ पे अलग अलग शरीर में हम प्रवेश कर सकते हैं। चाहिए तो हम देवता बन सकते हैं, स्वर्गलोक में जा सकते हैं, चाहिए तो हम फिर से मनुष्य बन सकते हैं, या हम पशु बन सकते हैं, या अगर बहुत बुद्धिमान है तो फिर से भगवत धाम जा सकते हैं। वी कैन गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसलिए बेस्ट चॉइस क्या है? बेस्ट चॉइस है भगवान के धाम जाना। क्योंकि राजा का भी शरीर मिलेगा, उसमें भी कष्ट है। जैसे ये कोविड वायरस जो है, अरे कोई पॉलिटिशियन है या हॉलीवुड स्टार है, बॉलीवुड स्टार है, किसी को छोड़ता नहीं। छोड़ता है क्या? कोविड वायरस बोलता है क्या, अरे तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुमको मैं अफेक्ट नहीं करूंगा? कभी होता है ऐसा? नहीं। क्योंकि जिसने शरीर पाया है, ये भौतिक शरीर, उसको ये कष्ट मिलता ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसलिए इंटेलिजेंस है
हमको भगवत धाम जाना है, फिर से भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं करना है। ये साइकिल, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम, ये जो साइकिल है, चक्र है, फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म लेना, इससे मुक्त होके भगवत धाम जाना है। सो दिस ह्यूमन लाइफ इज अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट। तो हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं? हमने बहुत सारे लोग अब प्रश्न पूछ रहे थे कि भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हाउ कैन आई गो बैक होम, बैक टू गॉड इट, वापस हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं? फ्रीडम फ्रॉम ऑल प्रीवियस रिएक्शंस एंड द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग इन सच अ वे दैट देयर विल बी नो फर्दर रिएक्शंस इज कॉल्ड अकर्म। तो हम भगवत धाम जाना है तो हमको क्या करना है? अकर्म करना है। अकर्म का मतलब क्या है? वो कार्य जिससे आगे फल की प्राप्ति नहीं होती और पिछले जो फल है, जो रिएक्शंस है, उसे मुक्ति मिलता है। तो इसको बोलते हैं संस्कृत अकर्म। ये अकर्म क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो हमको ये जन्म मृत्यु के साइकिल से, चक्र से बाहर निकलना है, तो क्या करना पड़ेगा? अकर्म करना पड़ेगा। ये अकर्म क्या है? व्हाट इज अकर्म? अकर्म को न्यूट्रल एक्टिविटीज बोलते हैं। जैसे एक सोल्जर है, एक सिपाही है, अपने देश के लिए झगड़ा करता है। जैसे बॉर्डर में बहुत सारे हमारे भारतीय सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं। जब टेररिस्ट आता है, अपना गन AK-47 लेके बहुत वीरता के साथ टेररिस्ट को मार के आते हैं, है कि नहीं? वेरी करेजियस एक्ट। तो जब वापस आते हैं, उनको क्या मिलता है? अवार्ड, परमवीर चक्र, अलग अलग अवार्ड मिलता है। पर अगर वही सिपाही घर में आके बंदूक लेके, घर के जो बाजू में पड़ोसी का जो बच्चा है, अगर वो बहुत आवाज कर रहा है, उसको जाके उड़ा के आएगा, तो सिपाही को क्या मिलेगा? फांसी मिलेगा। तो सिपाही अगर पूछेगा, अरे मैं बॉर्डर पे 3-4 लोगों को मार के आया, आपने मुझे मेडल दिया, घर में आके मैंने एक छोटे से बच्चे को मारा, आपने मुझे फांसी दे दिया, ऐसा क्यों? दोनों जगह पे मैंने तो मारा ही था, वही कार्य था, कार्य वही था, पर हेतु अलग अलग था। पहला कार्य उसने किया था गवर्नमेंट की इच्छा अनुसार, गवर्नमेंट का आज्ञा पालन करते हुए। पर दूसरे बार जब वो बच्चे को मारता है, स्वयं की इच्छा के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए मारता है, इसलिए उसको फांसी मिलता है। तो अकर्म मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। कार्य तो हर एक व्यक्ति को करना है, पर जब हम हमारे संतुष्टि के लिए, फॉर आवर सेल्फिश डिजायर्स, व्हेन वी वर्क, इट इज कर्म। ये कर्म के साइकिल में हम फंसते हैं। पर जब हम भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं अकर्म, न्यूट्रल एक्टिविटीज, वर्किंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ गॉड। जैसे ये सिपाही गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो वैसे ही हमको भगवान के लिए काम करना है। सो व्हाट इज अकर्म? एक्टिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ गॉड बाय फॉलोइंग हिज अथॉरिटी एंड नॉट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड अकर्म और योग। अकर्म क्या है? भगवान के हित के लिए कार्य करना, भगवान के आज्ञा का पालन करते हुए। और भगवान का आज्ञा कहाँ समझ में आएगा? शास्त्र पढ़ के। इसलिए जैसे आप सब लोग, आई एम सीइंग लाइक 33 पीपल ऑनलाइन पार्टिसिपेटिंग, आप सब लोग आपका समय निकाल के आ रहे हैं गीता समझने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण ने गीता अर्जुन के लिए नहीं बताया है, हम सबके लिए बताया है। अर्जुन तो भगवान के महान भक्त हैं ऑलरेडी, पर अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको बता रहे हैं। इसलिए गीता पढ़ना, गीता के अनुसार जो जिंदगी जिएगा, उसको बोलते हैं अकर्म, नॉट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ये अकर्म का दूसरा शब्द है संस्कृत में योग। आपने बहुत बार सुना होगा योग, है कि नहीं? अभी 21 जून शायद इंटरनेशनल योगा डे, पूरा दुनिया मना रहा है इंटरनेशनल योगा डे। पर योग का मतलब क्या है? व्हाट डज योगा मीन? जब हम ये शब्द सुनते हैं योग, क्या मन में आता है? आसन आता है। यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ऊपर BKS अयंगार जो योगा गुरु हैं, योगा कर रहे हैं, और नीचे एक पियक्कड़, वो भी पी के, उसको लग रहा है वो योगा कर रहा है कि नहीं? इसलिए जब हम शब्द सुनते हैं योगा, हमारे मन में क्या आता है? आसन या प्राणायाम, ये योग है।
पर ये योग का एक अंग है, अष्टांग योग। इसके दो अंग हैं, प्राणायाम और आसना। पर योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य है समाधि। समाधि का मतलब है भगवान के साथ जोड़ना, टू एस्टैब्लिश दी कनेक्शन विद गॉड। तो इसलिए योग क्या है समझने से पहले योग क्या नहीं है वो समझना पड़ेगा। तो योग क्या है? योग मीन्स टू जॉइन, युज। ये जो शब्द है योग किससे आता है? युज, टू कनेक्ट। अभी हम भगवान के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो टूट गया है। जैसे पहले सेशन में हमने डिस्कस किया सर्च फॉर हैप्पीनेस में, वो जो एक बच्चा है, रईस पिता का जो बच्चा है, मेले में खो जाता है, बिछड़ जाता है अपने पिता से और दुख की अनुभूति करता है। तो वैसे ही हमारे पिता से, परम पिता से, भगवान से हम बिछड़ गए हैं और इसलिए हम दुख की अनुभूति कर रहे हैं। तो योग का मतलब फिर से जॉइन करना भगवान के साथ। व्हाई टू कनेक्ट? कोई बोलेगा अरे मुझे भगवान के साथ कनेक्शन क्यों करना है? ये दुनिया में अभी एटलीस्ट इन द मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी में इंटरनेट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इंटरनेट, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, ये सब बहुत जरूरी है। स्पेशली वर्क फॉर होम, वर्क फ्रॉम होम कल्चर में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी कनेक्टेड टू पीपल। लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए बाबा, राइट? व्हाई टू कनेक्ट? क्योंकि कनेक्शन के बिना हम जिंदगी जी नहीं सकते। वी कांट स्टे अलोन। इमेजिन कीजिए पूरे दुनिया में हम अकेले हैं और कोई है ही नहीं। हम खुश रहेंगे क्या? बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि संबंध चाहिए खुश रहने के लिए। जैसे एक हाथ है, हाथ से उंगली कट गया तो उंगली का कुछ उपयोग है क्या? कटा हुआ उंगली का उपयोग है? नहीं। जब तक हाथ के साथ जुड़ा है, शरीर के साथ जुड़ा है, तो उंगली का मतलब है। कट गया उंगली हाथ से, वो उंगली का मतलब नहीं होता। जैसे व्यक्ति को बाल होते हैं, राइट? बार्बर के पास जाके व्हेन कटिंग करते हैं, बाल निकल गए हैं सर से, वो क्या करते हैं? उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। जब तक सर में है बाल, तब तक उसको कोम्ब करते हैं, अलग-अलग सलून्स में जाते हैं, स्पा में जाते हैं, बहुत समय देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं बाल को। हाँ, आईना दिखते रहते हैं। पर कटा हुआ बाल मिलेगा स्वयं का भी, उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। घृणा आता है उसको देख के। इमेजिन करो आप खा रहे हो स्पेशल एक आइटम और उसमें बाल मिलता है आपका, कैसा लगेगा? गंदा लगेगा। पर आपका ही बाल है, जब तक सर पे है इतना आप सजाते हो उसको, मेकअप करते हो, निकल गया तो उसको फेंक देते हो। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर के साथ जुड़ा है ये बाल, तब तक इसका वैल्यू है। शरीर से निकल गया, इसका वैल्यू, कनेक्शन छूट गया शरीर से, इसका वैल्यू चला जाता है। जैसे एक स्क्रू होता है, मशीन का एक स्क्रू होता है, जब तक मशीन के साथ जुड़ा है उसका वैल्यू है, मशीन के साथ कनेक्शन छूट गया उसका अर्थ चला जाता है। तो वैसे ही या मछली, हम्म, मछली जब तक पानी में है तब तक खुश है मछली, पानी से निकल गया इतना तड़पता है। मैं जहाँ रहता हूँ, गोवा में, वहां पे हमको एक नदी, फेरी बोट में एक नदी क्रॉस करना पड़ता है। जब ये फेरी बोट डॉक होता है एक जगह पे, तब बहुत बार उसके जो वेसल के जो लेवरेज है उस पे अलग अलग फिश उठते हैं पानी से निकल के। ऐसा फिश तड़पता है ये मछली, पानी के कनेक्शन। मछली बहुत तड़पता है। बिना पानी के उसको आप आईफोन 6 दो या इंटरनेट दो, मैकबुक दो, खाने के लिए पिज्जा पास्ता दो, मछली खुश नहीं रहेगा। मछली को क्या चाहिए? पानी चाहिए बस। तो वैसे ही हम सब अ, हम सब ये मछली की तरह है। जब तक भगवान के साथ कनेक्शन है तब तक हम खुश रहेंगे। भगवान के साथ वो कनेक्शन छूट गया, हम हमारी जिंदगी में दुख की दुख आएगा। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है, व्हाई टू कनेक्ट। गीता क्यों पढ़ना है? भगवान की भक्ति क्यों करना है? स्पिरिचुअलिटी क्यों करना है? क्योंकि यहीं पे हमको आनंद मिलेगा। हम बहुत प्रयास करते हैं जिंदगी में आनंद प्राप्त करने का, है कि नहीं? अलग अलग मूवीज देखते हैं, लोग बाहर देशों में, यूरोप अमेरिका टूर के लिए जाते हैं, पर ये सब हमको, हृदय को, आत्मा को संतुष्टता नहीं देगा।
संतुष्टता पाने का सरल मार्ग है भगवान के साथ संबंध जोड़ो। वो जो संबंध टूट गया है उसको वापस स्थापित करो। सो व्हाई टू कनेक्ट? बिकॉज फॉर आवर वेल बीइंग, हमारे हित के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारे आनंद के लिए हमको भगवान के साथ ये कनेक्शन जोड़ना है। तो योग का मतलब है कनेक्शन। योग सिर्फ शरीर बनाने के लिए नहीं है, योग अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं है, ये योग का साइड बेनिफिट्स हो सकता है। प्राणायाम आसन करके स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, पर ये योग का अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है। योगा इज नॉट फॉर इंक्रीज लाइफ स्पैन। सिर्फ आयु बढ़ाने के लिए योग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ रहते हैं जो हजारों साल जीते हैं, पर ये पेड़ों का क्या फायदा? आयु बढ़ाना ठीक है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आयु दिया है भगवान ने हमको, उसको कैसे उपयोग करें। हाउ डू वी यूटिलाइज इट प्रॉपरली? सो योगा इज फॉर, नॉट फॉर मिस्टिक पावर। शक्ति प्राप्त करने के लिए योग नहीं है। योग किसके लिए है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना। तो कृष्ण गीता में अलग अलग तरह के योग बताते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। हम्म? जब ये शब्द आता है योग, योग का मतलब है भगवान के साथ जुड़ाव है। इसलिए जब हम कार्यों को भगवान के साथ जोड़ते हैं, बाकी अलग अलग कर्म करते हुए, उसको बोलते हैं कर्म योग। जब हम अ, ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं ज्ञान योग। जब हम बैठ के ध्यान करते हैं भगवान के ऊपर उसको बोलते हैं ध्यान योग। पर द हाईएस्ट योग, सबसे ऊंचा योग गीता के अनुसार, क्योंकि गीता योग शास्त्र का पुस्तक है, योग समझना है तो गीता पढ़ना पड़ेगा। जैसे जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, हमारे एक पुस्तक था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, BL थेरेजा एक पुस्तक था। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी समझना है, BL थेरेजा वो एक पुस्तक है। तो वैसे ही योग के बारे में कुछ भी समझना है, भगवत गीता पुस्तक है, दैट इज द मैन्युअल। तो कृष्ण गीता में बहुत क्लियरली बताते हैं सब योगों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग। भक्ति योग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल, हर एक व्यक्ति कर सकता है भक्ति योग। प्रहलाद महाराज, भागवत में कहानी आती है, शायद आप सब लोगों ने सुना होगा बचपन में, आपकी नानी जो दादा दादी है बताते होंगे। जब प्रहलाद उनके माँ के गर्भ में थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र, उस समय ही उनका भक्ति योग शुरू होता है। नारद मुनि से भगवान के बारे में सुनते हैं। तो कौन सा योग है जो शिशु माँ के गर्भ में सकता है? भक्ति योग। और परीक्षित महाराज जो अर्जुन के पोते हैं, उनको एक नोटिस मिलता है, उनको श्राप मिलता है कि 7 दिन में उनका मृत्यु होगा। अभी 7 दिन में कौन सा योग को परफेक्ट कर सकते हैं? अष्टांग योग को परफेक्ट करना है, आसन प्राणायाम भी परफेक्ट करना है, बहुत साल लगते हैं। तो इसलिए कौन सा योग है 7 दिन में व्यक्ति सफल हो सकता है? भक्ति योग। सो भक्ति योग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल, एक बच्चा भी कर सकता है, इवन अ चाइल्ड कैन परफॉर्म भक्ति योग। तो हर एक व्यक्ति हर एक अवस्था में भक्ति योग कर सकता है। सो इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल। जैसे विंडोज है, विंडोज के अलग अलग वर्जन होते हैं, है कि नहीं? विंडोज 2000 प्रोफेशनल, मेनी मेनी वर्जन्स। जैसे मोबाइल के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, मोबाइल्स के या अलग अलग जो एप्स हैं हमारे पास हमारे मोबाइल में, उसके अपडेट्स होते रहते हैं, डिफरेंट वर्जन्स। अभी विंडो का कौन सा वर्जन बेस्ट है वो पूछना है तो किसको पूछोगे? बेस्ट है बिल गेट्स को पूछ लो। बिल गेट्स कौन है? जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर, मालिक, और उसका ब्रेन चाइल्ड। इसको पूछ लो बिल गेट्स को, बिल गेट्स बता देगा सबसे बेस्ट वर्जन कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि ही इज द अथॉरिटी। तो वैसे ही कौन सा योग श्रेष्ठ है? ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, कौन सा योग श्रेष्ठ है? किसको पूछेंगे? कृष्ण को पूछ लो, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर है। जितने भी योग हैं उनके ईश्वर कृष्ण है। उन्होंने गीता बताया है जो योग शास्त्र है, और गीता में कृष्ण बहुत बार बताते हैं भक्ति योग श्रेष्ठ है। ये 6वां अध्याय गीता का 6th चैप्टर, इसका शीर्षक है ध्यान योग। हालांकि पूरे अध्याय में भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं,
पर इसके अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं योगिनाम सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। वो बोलते हैं हे अर्जुन, योगिनाम अपि सर्वेषां, सब योगियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? मद्गतेन अंतरात्मना, जो हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है। समय युक्त तमो मतः, दैट इज माय ओपिनियन। ऐसा जो भक्ति योगी है सबसे श्रेष्ठ है। सो दिस इज कृष्णास ओपिनियन। कृष्ण का ये ओपिनियन है, भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है और भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी गलत धारणा रहता है, ऑल पाथ्स लीड टू द सेम गोल, ये तो मत ततो पथ। आप कौन सा भी मार्ग का पालन करो, अंत में तो वही होगा जो नदियां हैं समुद्र में ही मिलते हैं। तो आप कुछ भी करो, अंत में भगवान की प्राप्ति होगी। इतना सरल नहीं है। हर एक जो मार्ग है वही लक्ष्य पे जाता है। दिस इज नॉट राइट। क्योंकि जैसे ट्रेन स्टेशन में आप जाओगे, आप दिल्ली के ट्रेन में बैठोगे, कहाँ जाओगे? दिल्ली ही जाओगे। बॉम्बे के ट्रेन पे बैठोगे, बॉम्बे जाओगे। बॉम्बे के ट्रेन पे बैठ के आप बोलोगे सब एक ही जगह है, सब चीज वही मिलता है। ऐसा नहीं होता। आपको बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे के ट्रेन में बैठना पड़ेगा, दिल्ली जाना है तो दिल्ली के ट्रेन पे बैठना पड़ेगा। तो इसलिए पहले लक्ष्य तैयार करना है, हमको क्या प्राप्त करना है। हाँ, वेदर वी वांट, हमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी है कि भगवत धाम जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है। सो द अदर योगा सिस्टम, जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, दीज आर इनडायरेक्ट प्रोसेसेस। इनडायरेक्ट प्रोसेस समझते हैं, समय लगता है। अल्टीमेटली ये योगा सिस्टम भक्ति योग में ही कल्मिनेट होगा, पर समय लगेगा। हम्म, जैसे कृष्ण गीता में योगा लैडर बताते हैं। पहला व्यक्ति कर्म योगी बनता है। अगर कोई कर्म योग का मार्ग का पालन कर रहा है, कर्म योग का पालन करते हुए सकाम कर्म होता है, निष्काम कर्म। पहले कर्म करता है, फल की अपेक्षा करता है। ऐसा करते करते उसका चेतना बढ़ता है और निष्काम कर्म के स्तर पे आता है। कर्म करता है पर फल की अपेक्षा नहीं करता। उसके बाद वो ज्ञान योग, ये क्योंकि निष्काम कर्म फल की अपेक्षा न करते हुए जब कर्म करता है, उसको ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान योग में प्रवेश करता है। तो कर्म योग से ज्ञान योग आ गया। ज्ञान योग के बाद ध्यान करता है। जब उसको समझ में आता है ज्ञान का अल्टीमेट लक्ष्य है ध्यान करना, ध्यान करने के लिए बैठता है। पर जब ध्यान करता है उसको समझ में आता है ध्यान के विषय कौन है? भगवान। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, आप पूछो किसके ऊपर मेडिटेशन कर रहे हो, बोले ऐसे ही मेडिटेशन कर रहा हूं। मेडिटेशन मतलब एक रूप होना चाहिए भगवान का। तो ऐसा व्यक्ति अल्टीमेटली भक्ति योग में आता है। तो अदर योगा प्रोसेस आर लाइक स्टेप्स, सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। अगर भगवान की प्राप्ति 100 फ्लोर जैसा है, 100 फ्लोर पे पहुंच गए तो भगवान की प्राप्ति हो गई, एग्जाम्पल के रूप में। तो अलग अलग प्रोसेस, कर्म योग जो है 25th फ्लोर तक लेके जाता है, ज्ञान योग 50th फ्लोर तक लेके जाता है, ध्यान योग 75th फ्लोर तक लेके जाता है। बट फाइनली भगवान की प्राप्ति करने के लिए भक्ति योग स्वीकार करना ही पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। तो अगर भक्ति योग स्वीकार करना ही है तो इन डायरेक्ट प्रोसेस ले लो। डायरेक्ट प्रोसेस क्या है? लिफ्ट, टेक द लिफ्ट। लिफ्ट में बैठ जाओ, सीधा पहुंच जाओगे। अभी 100 माला कौन चढ़ेगा, लेकिन नहीं, लिफ्ट पे बैठ जाओ, बटन दबाओ, आराम से पहुंच जाओगे। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं भक्ति योग एक लिफ्ट है, सुलभम सुसुखम प्राप्तम। भगवान बोलते हैं ये जो भक्ति योग है बहुत सुलभ है और बहुत सुखमयी है, हर एक व्यक्ति बहुत आसानी से प्रगति कर लेगा। सो दिस इज अ डायरेक्ट प्रोसेस। भगवत गीता एक सैंडविच की तरह है। आप सब लोगों ने सैंडविच खाया होगा, है कि नहीं? तो सैंडविच के अलग अलग नाम होते हैं, चीज सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आर देयर। तो इस सैंडविच में ऊपर और नीचे ब्रेड ही होता है कि नहीं? बीच का जो स्टफिंग है वो चेंज होता है और उसके हिसाब से उसको नाम मिलता है। चीज है तो चीज सैंडविच, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल सैंडविच, राइट? तो वैसे ही गीता में 18 अध्याय है। कितने अध्याय हैं गीता में? 18 चैप्टर्स, 6 6 6 ऐसा विभाजन होता है। 6 चैप्टर 6 चैप्टर 6 चैप्टर्स।
तो पहले जो 6 अध्याय है गीता गीता का कर्म के बारे में बताता है, कर्म योग के बारे में मुख्यतः, और अंत के जो 6 अध्याय हैं ज्ञान योग के बारे में बताता है। पर बीच के जो 6 अध्याय हैं भक्ति योग के बारे में बताते हैं। हालांकि पूरे गीता में भगवान भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, फिर भी स्पेसिफिकली जो बीच के जो 6 अध्याय हैं भगवान स्पेसिफिकली भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे सैंडविच है, सैंडविच का नाम कैसे मिलता है? जो बीच का भाग है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कृष्ण ने ये गीता को जो ज्ञान है, सॉरी भक्ति का जो ज्ञान है गीता में बीच में रखा है। जैसे किसी के पास बहुत खजाना है, ट्रेजर है, वो कहाँ रखता है? उसके हॉल में नहीं रखता, सबसे बीच वाले कमरे में रखता है घर में, वेरी सिक्योर। तो वैसे ही भगवान ने ये जो भक्ति के चैप्टर्स हैं बीच में रखा है, ये बताने के लिए गीता का सार है भक्ति योग। भक्ति योग इज द एसेंस। तो हमने देखा कि भक्ति योग इज वेरी इजी टू प्रैक्टिस, बहुत सरल है। हम बताएंगे आपको बहुत जल्दी अभी इसका प्रैक्टिस कैसे होता है। इट इज वेरी इजी, कोई भी कर सकता है इसका प्रैक्टिस। तो वर्णन आता है कि भक्ति योग का मतलब क्या है? भक्ति योग का मतलब भगवान के साथ जो प्रेम है उसको प्राप्त करना। देखिए दुनिया में हर एक व्यक्ति प्रेम का भूखा है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर लव। प्रेम देना और प्रेम प्राप्त करना, इसलिए दोस्त बनाते हैं, इसलिए शादी करते हैं, अलग अलग संबंध बनाते हैं। क्यों? लोग कुत्ते बिल्ली क्यों रखते हैं घर में? क्योंकि प्रेम चाहिए हर एक व्यक्ति को। हर एक व्यक्ति प्रेम का भूखा है। जैसे मदर तेरेसा, एक बार उन्होंने बताया, इन दिस वर्ल्ड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हंगर। कि दुनिया में सबसे बड़ा समस्या है भूख, और हर एक व्यक्ति भूखा है। एवरीवन इज हंग्री, द रिच एंड द पुअर। रईस भी भूखे हैं और जो गरीब हैं वो भी भूखे हैं। किसके भूखे हैं? पेट के भूखे नहीं, प्रेम के भूखे हैं। और ये प्रेम कौन संतुष्ट कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान के साथ हम संबंध जोड़ेंगे तभी हमारा प्रेम संतुष्ट होगा। तो ये जो प्रेम है बाहर से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है हमारे हृदय में। इसको विकसित करना है। वी हैव टू जस्ट रिवाइव इट। जैसे माइकल एंजेलो करके एक बहुत फेमस स्कल्पटर थे, मूर्ति बनाते थे। किसी को पूछा आप इतने सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हो? तो माइकल एंजेलो ने बोला मैं कुछ करता नहीं, मूर्ति ऑलरेडी है वो पत्थर में। जो चीज नहीं चाहिए, जो पत्थर जरूरत नहीं है, उसको मैं निकालता हूँ और वो मूर्ति दिख जाता है। तो वैसे ही भगवान के प्रति जो प्रेम है ऑलरेडी हमारे हृदय में है। पर अभी क्या हो चुका है? अलग अलग चीजों से ढक चुका है वो प्रेम। वी हैव, इट हैज बीन कवर्ड बाय सो मेनी थिंग्स, स्पेशली काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन। ये सब से हमारा जो कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो ढक चुका है, कवर हो चुका है। इसलिए भक्ति के माध्यम से हमारे हृदय को शुद्ध बनाना है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चेतना को शुद्ध बनाना है, साफ करना है। जैसे मैग्नेट जानते हैं? मैग्नेट आयन को, जो नेल है या एक पिन है, उसको आकर्षित करता है। पर वो पिन में जंक लग गया, रस्ट लग गया, तो आकर्षित नहीं कर पाएगा। पर वो रस्ट को आप साफ करोगे सॉल्ट पेपर के साथ, इमीडिएटली अट्रैक्ट करेगा। तो वैसे ही नेचुरली, स्वाभाविक रूप से हमको कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। पर क्योंकि बहुत सारे अनर्थ हैं, वो आकर्षण छूट चुका है। इसलिए भक्ति के माध्यम से हमारे हृदय को हमको शुद्ध बनाना है फिर से। वी हैव टू प्यूरिफाई आवर हार्ट। तो अलग अलग धारणा है, गलत धारणा है लोगों को भक्ति के बारे में। तो लोगों का धारणा ये रहता है मुझे सब कुछ छोड़ के ब्रह्मचारी सन्यासी बनना पड़ेगा क्या? जरूरत नहीं है। तो अगर जरूरत नहीं है तो कोई बोलेगा आप क्यों बने हैं ब्रह्मचारी? क्योंकि कोई तो होना चाहिए इसका प्रचार करने के लिए, दैट्स ऑल। पर हर एक व्यक्ति को जरूरत नहीं है ब्रह्मचारी या वैराग्य का मार्ग स्वीकार करने के लिए। घर में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण ये गीता का ज्ञान किसको देते हैं? अर्जुन को देते हैं।
नारद मुनि को नहीं देते, सन्यासी को नहीं देते, अर्जुन को देते हैं, ये बताने के लिए कि गृहस्थ भी घर में रह के भी अलग अलग उत्तरदायित्व करते हुए भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और अर्जुन देखिए उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे। पूरे दुनिया का जो युद्ध है और जो गति है, रिजल्ट है, उनके हाथ में था, अर्जुन के हाथ में। और भगवान अर्जुन को चुनते हैं गीता सुनाने के लिए। तो भगवान दिखाना चाहते हैं कि अर्जुन गृहस्थ थे, उनकी पत्नियां थी, बच्चे थे और बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट था, फिर भी अर्जुन गीता सुनते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति गीता का पालन कर सकता है। अगर कोई प्रामाणिक है, हर एक व्यक्ति कर सकता है। अर्जुन की तरह कोई बिजी नहीं रहता। पता है कि अर्जुन की तरह कोई बिजी, इतना तो कोई बिजी नहीं है। अर्जुन ने अगर गीता सुना, हम भी गीता सुन सकते हैं। तो ये दूसरा गलत धारणा है लोगों का कि बहुत समय लगता है भक्ति, अभी तो मेरे पास समय ही नहीं है। ये आधुनिक समाज का सबसे बड़ा बीमारी है, नो टाइम डिजीज, है कि नहीं? सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट कार है, सब कुछ स्मार्ट है, पर समय नहीं है। वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है। ये सब टेक्नोलॉजी क्यों आया है? समय बचाने के लिए। पर जितना टेक्नोलॉजी बढ़ता है उतना लोगों के पास समय नहीं होता, नो टाइम। फालतू के चीजों के लिए समय होता है, पर उनको बोलो सत्संग आओ, गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, समय नहीं है। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। समय हमको निकालना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव टाइम। जब किसी चीज का महत्व पता चलेगा, हम समय निकालते हैं, है कि नहीं? जैसे कोविड फेज चल रहा है, बहुत सारे लोग जो काम करके आते हैं तुरंत आके स्नान करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, कपड़ा धोते हैं। क्यों? क्योंकि महत्व पता है इस चीज का। महत्व पता है तो समय निकालेंगे। खाने के लिए समय होता है कि नहीं? कभी ऐसा हुआ है क्या इतने बिजी थे खाना खाना भूल गए? कभी हुआ है? समय होता है। क्यों? क्योंकि पता है नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए ये समझना कि शास्त्र भक्ति भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा खाना इंपॉर्टेंट है, वैसा आत्मा के लिए खाना है भक्ति। मुझे भक्ति करना ही है। जब व्यक्ति कन्विंस्ड होगा इंपॉर्टेंस, जब किसी चीज का महत्व पता चलेगा, वो चीज करेगा व्यक्ति। तो इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये मेरा जिंदगी और मृत्यु का सवाल है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ एंड डेथ। अगर ये भक्ति नहीं करूंगा, सो देन माई लाइफ विल नॉट बी परफेक्ट। महत्वपूर्ण है। जैसे किसी को अगर कोविड होता है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको ऑक्सीजन मास्क मिलता है कि नहीं? और वो ऑक्सीजन मास्क बहुत गंभीरता से लेता है, क्योंकि उसको पता है ये ऑक्सीजन चला गया तो मेरा जिंदगी चला गया। तो वैसे ही भगवान के साथ जो संबंध है हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, आत्मा के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। और एक गलत धारणा रहता है लोगों के पास, स्पिरिचुअलिटी इज अ रिटायरमेंट प्रोग्राम। हम लोगों को बोलते हैं भक्ति करो, लोग बोलते हैं अरे बूढ़ा हो जाऊंगा तब करूंगा, अभी थोड़ा मजा कर लेता हूँ, अभी मजा करने का समय है, बाद में भक्ति बाद में देखेंगे, लेट मी एंजॉय, अभी तो मैं नौजवान हूँ, मजा करता हूँ। पर प्रश्न है कि किसी को पता है क्या मृत्यु कब आने वाला है? ऐसा कहीं पे लिखा है कि बूढ़े लोगों को ही मृत्यु आता है, नौजवान लोगों को भी मृत्यु आता है कि नहीं? ये कोविड फेज में हमने देख लिया कितने सारे नौजवान लोगों को मृत्यु आ गया। तो इसलिए हमेशा तैयार रहना है। मृत्यु एक एग्जामिनेशन की तरह है। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। मृत्यु एक एग्जामिनेशन की तरह है और कभी भी आएगा, इसलिए हमको तैयार रहना है। तो भक्ति कब करना है? अभी। प्रहलाद महाराज भागवत में बोलते हैं कौमारम आचरे प्रज्ञो, व्यक्ति का 5 साल उम्र हो गया, उसको भक्ति शुरू कर देना चाहिए। सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ रिटायरमेंट प्रोग्राम। बूढ़ा होके करने के लिए भक्ति नहीं है, अभी से करना है। हाँ? क्योंकि मृत्यु कब आएगा पता नहीं, वी डोंट नो व्हेन इट विल कम। और भक्ति का प्रोसेस है, इसको समझना, पालन करना समय लगता है, इट टेक्स प्रैक्टिस। व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है और कुछ करने का ही क्षमता नहीं है, तब क्या भक्ति करेगा? जैसे आप आपके दोस्त का बर्थडे है, आप उसको फूल लेके जाते हो, कैसा फूल लेके जाओगे? फ्रेश फूल। हाँ? आप जो मुरझाया हुआ फूल है वो लेके नहीं जाएंगे, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू,
फ्रेश फूल लेके जाएंगे, ठीक है नहीं? तो वैसे ही हमको भगवान को कुछ देना है, जब शरीर में स्वास्थ्य है, सेहत है, शरीर अच्छे से काम कर रहा है, तभी अर्पण करना है भगवान को। सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ रिटायरमेंट प्रोग्राम, हमको अभी से करना है। दूसरा एक गलत धारणा रहता है लोगों को, स्पिरिचुअलिटी मतलब इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावुकता। हम लोगों को बोलते हैं भक्ति करो, लोग बोलते हैं बहुत है अंदर, अंदर बहुत भक्ति भरा है, मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है, बहुत है अंदर भक्ति। पर भक्ति है, उसका मतलब है सेवा करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर कोई लड़का लड़की को बोलता है आई लव यू नो, प्रपोज करता है लड़की को और बोलता है आई लव यू, मैं बहुत प्रेम करता हूँ आपसे। लड़की बोलती है मुझे थोड़ा प्यास लगा है, आप पानी लेके आओगे क्या? लड़का बोलता है आई लव यू, बहुत प्रेम करता हूँ। लड़की बोलती है प्यास लगा है, पानी लेके आओ। वो बोलता है मैं बता नहीं सकता, आई लव यू सो मच, इतना प्रेम करता हूं मैं आपसे। लड़की बोलती है अरे प्रेम करते हो तो सेवा करो। तो वैसे ही कोई भी बोल सकता है भगवान का जो भक्ति ना, भगवान के प्रति प्रेम ना बहुत है मेरे हृदय में है, तो सेवा करना पड़ेगा। लव मीन्स टू सर्व, प्रेम है तो सेवा करना है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, उन्होंने भक्ति के जो शब्द है उसको ट्रांसलेट किया डिवोशनल सर्विस, भक्तिमयी सेवा। तो भक्ति सिर्फ एक भावुकता नहीं है, भावनाएं भी है, पर उसके साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। So, अभी we'll come to the most important part of this session. How do I practice bhakti yoga in my family life? हमारे रोज की जिंदगी में बाकी कार्य करते हुए, अगर कोई स्टूडेंट है पढ़ाई करते हुए, या कोई जॉब कर रहा है जॉब करते हुए, परिवार संभालते हुए, हम भक्ति योग कैसे करें? 5 चीज। फर्स्ट, जैसे व्यक्ति बीमार होता है, वो बीमारी से कैसे मुक्त होता है? 5 चीज करना पड़ेगा उसको। तो वैसे ही हम सब आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं, वी आर ऑल स्पिरिचुअली डिजीज्ड। इसलिए वापस स्पिरिचुअल स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए 5 चीज करना पड़ेगा। फर्स्ट, एक्सेप्ट दैट वन इज सिक। पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हम बीमार हैं। अगर कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास जाके इलाज कैसे लेगा? सो फर्स्ट इज टू एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं कष्ट में हूं, हालांकि मैं लोगों को दिखाता हूं कि मैं बहुत खुश हूं, पर अंदर से मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है, बहुत सारे कष्ट है मुझे। 3 मिजरीज, हमेशा मन बीमार रहता है, अलग अलग कष्ट देता है, लोग पीड़ा देते हैं। तो ये दुनिया में बहुत समस्या है। हम्म, जैसे जो भूखा है वो व्यक्ति खाने को अप्रिशिएट करेगा, तो वैसे ही भगवान के लिए भूख होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हैव हंगर फॉर गॉड। भगवान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नीड गॉड। कौन स्वीकार करेगा? जो पहले मानेगा कि मेरा डिजीज है, आई एम डिजीज्ड, मैं कष्ट में हूँ, मैं बहुत तड़प रहा हूँ ये दुनिया में। ये जो व्यक्ति स्वीकार करेगा, तब वो भगवान की भक्ति लेगा, ये जो सॉल्यूशन है, रेमेडी है, उसको स्वीकार करेगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट दैट वन इज सिक। उसके बाद तो इसलिए हमने देखा अ, ये जो अलग अलग चीज है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेश, ये सब सिम्टम्स है हमारे बीमारी, बीमार अवस्था का। सो फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट दैट वन इज सिक। उसके बाद हम क्या करते हैं? अगर बीमार हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, टू गो टू द राइट हॉस्पिटल। तो वैसे ही भगवान के जो मंदिर है एक हॉस्पिटल की तरह है। सो टेम्पल्स आर लाइक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि व्यक्ति जब बीमार रहेगा, हॉस्पिटल में जाके वो ठीक होगा। तो वैसे ही बहुत सारे लोग पूछते हैं अरे मंदिर की क्या जरूरत है, भगवान तो सब जगह है, मंदिर की क्या जरूरत है? भगवान सब जगह है, वो तो सही है, पर आप भगवान की अनुभूति सब जगह कर सकते हो क्या? उसका शिक्षण प्राप्त करने के लिए मंदिर है। हमारे आध्यात्मिक रोग से, स्पिरिचुअल डिजीज कंडीशन से मुक्त होने के लिए मंदिर है। तो मंदिर जाना भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोच द राइट हॉस्पिटल, सही मंदिर जाना और मंदिर में शिक्षण प्राप्त करना। तो जैसे आप लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हो, ये क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? गीता के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए इस्कॉन एक हॉस्पिटल की तरह है और एक यूनिवर्सिटी की तरह है। यहाँ पे हम ज्ञान दे रहे हैं।
जो ज्ञान आपको आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं मिलता, वो ज्ञान दे रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में कमाई करने का ज्ञान मिलेगा, कैसे पढ़ाई करके अर्निंग करना है, पर जिंदगी कैसे बिताना है, जिंदगी का अर्थ क्या है, अलग अलग जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस है, भगवान कौन है, ये मृत्यु क्या है, ये सब का उत्तर प्राप्त करने के लिए मंदिर आना पड़ेगा और गीता भागवत सुनना पड़ेगा। सो टेम्पल इज लाइक ए यूनिवर्सिटी, एक एजुकेशन है। इसलिए जैसा मटेरियल एजुकेशन होता है, वैसे ही स्पिरिचुअल एजुकेशन होता है। ये भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड। गीता को पढ़ना, तो जैसे मैं बता रहा था, कृष्ण गीता अर्जुन के लिए नहीं बता रहे हैं, हम सब के लिए बता रहे हैं। इसलिए गीता को पढ़ना, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्पल इज लाइक ए यूनिवर्सिटी। टेम्पल इज लाइक अ बैटरी चार्जर। जैसे होता है ना मोबाइल, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, पर मोबाइल को एवरीडे चार्ज करना पड़ता है कि नहीं? दिन भर यूज करोगे, सुबह क्या होता है, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है। तो वैसे ही हम मंदिर आएंगे, मंदिर एक चार्जर की तरह है। जैसे आप सब लोग, दिस इज द 4th सेशन। तो पहले जैसे मैंने किया था, आप सब लोगों को फिर से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन कि आप लोग ये 4 सेशन अटेंड किया आप लोगों ने। तो इट्स नॉट एन इजी थिंग, इतना आसान नहीं है। सैटरडे संडे, फिर से सैटरडे संडे निकालना, इससे समझ में आता है कि आप सब लोग बहुत प्रामाणिक हैं, यू आर वेरी सिंसियर। तो ये प्रामाणिकता तो आप कंटिन्यू करेंगे, यही सिंसियरिटी को आप कंटिन्यू करेंगे, बहुत आपको आनंद मिलेगा, आपका प्रगति बहुत होगा। तो जैसे आप लोग ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं? थोड़ा स्पिरिचुअलिटी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे भक्ति करना है, मुझे कुछ तो भगवान के साथ कनेक्शन करना है। शायद आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा। पर प्रॉब्लम क्या है, जब ये सेशंस खत्म होगा ना, आज फाइनल सेशन है ना ये मंत्र ऑफ लाइफ का, इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये स्पिरिचुअल बैटरी डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा अवश्य। ये सेशन बंद होते ही आपका बैटरी डिस्चार्ज होगा। उसके बाद क्या करना है, फिर से बैटरी चार्ज करना है। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, हम क्या करते हैं, चार्जर ढूंढते हैं ना, कहाँ है चार्जर चार्जिंग करने के लिए। तो वो तड़प भक्ति में भी होना चाहिए। ये क्लास खत्म हुआ, ऐसा नहीं कि मेरा भक्ति ही खत्म हो गया, नो। तो इसलिए हमारा आपके साथ निवेदन है, प्रपोजल है, वी वांट टू डू दिस फर्दर सेशंस। में हमने आपको थोड़ा एक अनुभव दिया है, एक ट्रेलर दिया है गीता का, पर गीता बहुत विस्तार एक विषय है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट। तो वी वांट टू डू वीकली क्लासेस फॉर यॉल। हमारा आशा है, इच्छा है, क्योंकि आप सब लोग बहुत सिंसियर हैं, आप लोगों को मदद करने के लिए हम वीकली क्लासेस करने के लिए तैयार हैं, गीता के अनुसार अलग अलग विषयों पे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, हम ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक मैसेज पोस्ट करेंगे और हम एक नया ग्रुप बनाएंगे। जिसको इंटरेस्ट है वीकली क्लासेस गीता के ऊपर अटेंड करने का, जो ये क्लासेस हमने किया, ऐसे ही और वीकली क्लासेस होगा, वो आप सब लोग वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, रेगुलर कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि ये कोर्स अटेंड कर दिया हो गया, अगले साल मिलेंगे, नॉट लाइक दैट। वीकली अटेंड करना, ये कनेक्शन रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम हमारे मोबाइल के जो बैटरी है उसको रेगुलरली चार्ज करते हैं, तो वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल बैटरीज को भी रेगुलरली चार्ज करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल का, पहले जमाने में हर एक घर के ऊपर एक झंडा होता था, दिखाने के लिए ये घर भगवान का घर है। पर अभी प्रॉब्लम क्या है, हर एक घर में ये झंडा है, एंटेना है, बताने के लिए ये जो टीवी है हमारा भगवान है। पहले घर के सब सदस्य आते थे और भगवान के सामने बैठ के भजन करते थे, कथा करते थे। अभी सब लोग आके क्या करते हैं, इडियट बॉक्स, टीवी को क्या बोलते हैं, इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स के सामने बैठते हैं। तो इडियट बॉक्स के सामने बैठेंगे तो क्या होगा, हर एक व्यक्ति इडियट ही बनेगा। तो इसे स्मार्ट बनना है, तो हमको समय किस में बिताना है, शास्त्र पढ़ के, ऐसा क्लासेस अटेंड करके। सो जैसे मैं बता रहा था, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू ऑल। आप सब लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन कि आप लोगों ने ये चुनाव किया, ये क्लास अटेंड करने का चुनाव। आप लोग ये समय जो है संडे शाम का समय, आप लोग टीवी में, मूवी में इन्वेस्ट कर सकते थे, पर आप लोगों ने चुना
गीता समझने का। तो ये जो चुनाव है आप करते रहिए, हर एक हफ्ता जो हमारे क्लासेस होंगे आप इसमें जुड़ते रहेंगे, बहुत परिवर्तन दिखेगा आपको, यू ऑल विल सी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो भगवान को केंद्र में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जिंदगी बिताते हुए। कीपिंग गॉड इन द सेंटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरा चीज, तो पहले तो हमको स्वीकार करना है हम बीमार हैं, दूसरा हॉस्पिटल जाना है, और तीसरा एक राइट डॉक्टर को अप्रोच करना है, अप्रोचिंग द राइट डॉक्टर। हम हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल के रिसेप्शन में फोटो नहीं निकालते सेल्फी, मस्त हॉस्पिटल है, क्या दिखता है हॉस्पिटल, आलेशान हॉस्पिटल, या वहां के एसी कहा के नहीं आते। हम हॉस्पिटल किसके लिए जाते हैं, डॉक्टर ढूंढते हैं। तो वैसे ही मंदिर आके सिर्फ सेल्फी निकाल के जाना मंदिर का रोल नहीं है। मंदिर में आके हमको डॉक्टर को ढूंढना है, मतलब भक्तों के साथ बैठ के उनसे चर्चा करना है आध्यात्मिक जीवन के बारे में। तो इसलिए मंदिर है, विग्रहों का दर्शन है मंदिर में, पर उसके साथ साथ भक्तों का संग करना, जिनको शास्त्र पता है उनसे सुनना। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम यानिन तत्वदर्शिना। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने ये तत्व को समझा है, उनसे सुनना, अप्रोचिंग द राइट डॉक्टर, मतलब गुरु के साथ संपर्क में आना, गेटिंग कनेक्टेड टू अ राइट गुरु। और गुरु कौन है, ये भी बहुत बड़ा एक टॉपिक है। हु इज द राइट गुरु, सही गुरु कौन है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे गुरुज अवेलेबल हैं। तो गुरु मतलब परंपरा में आने चाहिए। जैसे अगर किसी को इंजीनियरिंग समझना है, डिग्री प्राप्त करना है, या मेडिकल डिग्री प्राप्त करना है, उसको सही कॉलेज में भर्ती होना है, और जिसने ऑलरेडी जिसके पास डिग्री है इंजीनियर का, डॉक्टर का, ऐसे प्रामाणिक जो शिक्षिका है, टीचर है, उनसे सुनना है। तो वैसे ही गुरु मतलब परंपरा में होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आके बोलता है मुझे जो पता है या मुझे जो लगता है मैं बताता हूं, तो गड़बड़ है। जो लगता है किसी को वो सही नहीं होगा। शास्त्र के अनुसार गुरु स्वीकार करना है जो परंपरा में आते हैं। इसलिए मेरे पास अभी गीता नहीं है, पर जिन लोगों के पास शिला प्रभुपाद का इस्कॉन का गीता है, आप लोग देखोगे इंट्रोडक्शन में ही गीता शुरू करने से पहले प्रभुपाद पूरा गुरु शिष्य परंपरा देते हैं। हमारा जो इस्कॉन का परंपरा क्या है, कृष्ण ये ज्ञान ब्रह्मा को दे, ब्रह्मा नारद को, नारद व्यास को, व्यास मध्वाचार्य को, ऐसे करते हुए शिला प्रभुपाद तक आता है जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। इसलिए प्रभुपाद का भगवत गीता, उसका शीर्षक है भगवत गीता एज इट इज, जशी आहे तशी, या यथा रूप, क्योंकि जो कृष्ण बताना चाहते हैं वो मैसेज इंटैक्ट है। सो दिस इज थर्ड प्रिंसिपल, द थर्ड स्टेप, अप्रोचिंग द राइट डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर क्या बताता है, ट्रीटमेंट बताता है। डॉक्टर बोलता है थोड़े चीज को अवॉइड करो और थोड़े चीज को स्वीकार करो। सो 4 थिंग्स टू अवॉइड, जो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है, उसको उसको छोड़ देना, उसको तिरस्कार करना। तो शास्त्र वर्णन करते हैं धर्म के 4 पिलर्स हैं, 4 पिलर्स ऑफ धर्म, ऑफ रिलीजन। ये 4 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्यूरिटी, शुद्धता। तो शुद्धता को बना के रखना। तो इसलिए जब हम गलत चीज देखते हैं, स्पेशली सेक्स, पर स्त्री संग करना या पर पुरुष संग करना या पोर्नोग्राफी, ये सब जब देखते हैं, हमारे जो मन है बहुत दूषित होता है। ऑलरेडी मन दूषित है, उसको और दूषित करेंगे तो बहुत कष्ट होगा भक्ति करने के लिए और जिंदगी प्रगति करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा समस्या है, स्पेशली इंटरनेट के दुनिया के समय, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंटरनेट। हम अच्छा चीज भी देख सकते हैं, बुरा चीज के आदत भी देखने का भी आदत बन सकता है हमारा। तो इसलिए ये लत से बचना, प्यूरिटी बनाए के रखना। तो इसलिए हमको क्या करना है, इलिसिट सेक्स, जो पर स्त्री संग है, पर पुरुष संग है, उससे बच के रहना है। दूसरा प्रिंसिपल धर्म का है कंपैशन, दया, दूसरों के ऊपर दया दिखाना। तो इसलिए कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, हमारे वचनों से, हमारे कार्यों से। तो इसलिए हम सब पालन करते हैं, स्पेशली जो सीरियस फॉलोअर्स हैं भक्ति योग के, शाकाहारी डाइट, मांसाहार छोड़ देना। क्योंकि मांस खाने से जो कंपैशन है वो टूट जाता है, दूसरों के प्रति दया वो टूट जाता है।
तीसरा प्रिंसिपल है ऑस्टेरिटी, थोड़ा वैराग्य के का जीवन होना चाहिए। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी इन लाइफ। इसलिए जब इंटॉक्सिकेशन करता है व्यक्ति, नशापान, दारू, सिगरेट, अलग अलग जो चीज है, उससे वैराग्य टूट जाता है। इसलिए ये इंटॉक्सिकेशन से बचना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एंड फाइनली ट्रूथफुलनेस, हाँ, जीवन सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए। इसलिए जो गैम्बलिंग है, द्यूत क्रीड़ा, गैम्बलिंग, ये सब चीज में भाग नहीं लेना चाहिए। सो दीज आर थिंग्स टू अवॉइड। एंड नाउ अभी हम अगले 5 मिनट में सबसे महत्वपूर्ण चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पर अगर आप लोगों ने ये सेशन भी ध्यान से नहीं सुना, अभी जो 5 मिनट है, फाइनल 5-10 मिनट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कैसे गीता हमारे रोज की जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उतार सकते हैं। अप्लाइंग द ट्रीटमेंट। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थोड़े चीज अवॉइड करने को बोलते हैं और ट्रीटमेंट, मेडिसिन लेने को बोलते हैं। तो ये मेडिसिन क्या है? 4 चीज। ये 4 चीज आप समझ गए, फुल मार्क्स, गीता आप समझ गए। फर्स्ट है ए। ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, संग। किसका संग? भक्तों का संग। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। सब शास्त्र बताते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे। ये जो साधु संग है बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों के संग में आना, जैसे आप लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, हालांकि ये फिजिकल संग नहीं है, पर ऑनलाइन संग हो रहा है कि नहीं? जूम संग हो रहा है, ऑनलाइन एसोसिएशन। तो ये क्लासेस में आना, जब तक कोविड रहेगा तब तक ऑनलाइन चलेगा। सो अटेंडिंग दिस क्लासेस, भक्तों के संग में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं बता रहा था, तो हमारा आशा है और हमारा प्लान है कि आप सब लोगों के लिए एक वीकली कुछ कार्यक्रम करना है गीता के ऊपर। तो आप सब लोग ये कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, हमारा विनती है आपसे। सो ऑल ऑफ यू ट्राई योर बेस्ट टू ज्वाइन। हम आपसे फीडबैक भी लेंगे और आपको ये चुनाव भी देंगे, आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। पर आप सब लोग जुड़ेंगे, भक्तों के संग से जुड़े हुए रहेंगे एसोसिएशन में, निश्चित रूप से आपका प्रगति होगा। सो एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लैटिन अमेरिकन बोलते हैं, हम सबके हृदय में 2 कुत्ते हैं, एक अच्छा कुत्ता और एक बुरा कुत्ता। हम सबके हृदय में 2 कुत्ते हैं, गुड डॉग, बैड डॉग, और ये दोनों कुत्ते झगड़ते रहते हैं। अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता झगड़ता रहता है। कभी आपने अनुभव किया है? हृदय में कभी अच्छा आवाज आता है, कभी बुरा करने का आवाज आता है, दोनों में झगड़ा होता रहता है। असुर और देवता जो वृत्ति है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। तो ये 2 कुत्ते झगड़ रहे हैं, अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता। कौन सा कुत्ता जीतेगा? जो सबसे शक्तिशाली है वही कुत्ता जीतेगा, है कि नहीं? जिस कुत्ते को हमने खिलाया है, बढ़ाया है, शक्तिशाली बनाया है, वही कुत्ता जीतेगा। तो हमने हमारे बुरे आदतों को बढ़ाया है, तो वही कुत्ता जीतेगा। पर अगर हम अच्छे आदतों को बढ़ाते हैं, भक्तों के संग में आके, वो कुत्ता जीतेगा। तो इसलिए अच्छा बनना है तो अच्छा संग में रहना है। जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए टू स्टे इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुरे लोगों के संगति से बचना और भक्तों के संगति में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गीता का सार, वो है बुक्स। बी स्टैंड्स फॉर बुक्स। ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, बी स्टैंड्स फॉर बुक्स। बुक्स का मतलब है पुस्तक। कौन सा पुस्तक पढ़ना है? जो फिल्म मैगजीन्स है वो पढ़ना है? नहीं, पुस्तक पढ़ना है गीता भागवत, ये पुस्तक पढ़ना है। तो कृष्ण ने गीता दिया है, भागवत दिया है हम सबके लिए। तो जैसा मैं बता रहा था, अर्जुन के लिए नहीं था, हम सबके लिए था। इसलिए गीता खोल के पढ़ना। गीता सिर्फ पूजा रूम में रखने, पूजा करने के लिए नहीं है, इसको खोल के पढ़ने के लिए है। सो बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स एक तलवार की तरह है। अगर किसी चीज को काटना है तो तलवार होना चाहिए, और तलवार का जो धार है बहुत शार्प होना चाहिए। हाँ, यू हैव टू शार्पन इट। तो वैसे ही, या एक पेंसिल होता है ना, अगर पेंसिल से अच्छा लिखना है तो पेंसिल को शार्पन करना पड़ता है। वैसे ही बुद्धि से काम करना है तो बुद्धि को शार्प करना पड़ेगा। तो आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स भी रहेंगे, शायद
पहले सेशन में कोई पूछ रहा था पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ाई में फोकस कैसा होगा, मन अलग अलग चीजों में भटकता है। तो उसके लिए पुस्तक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे हमारा बुद्धि बहुत शार्प होगा, तो बाकी कार्यों में भी बहुत एफिशिएंसी आएगा, विल बिकम वेरी एफिशिएंट इन अदर थिंग्स। तीसरा प्रिंसिपल है चैंटिंग, कीर्तन करना या जप करना। हम सबके पास एक माला होता है, शायद पता नहीं आप में से खासकर गोवा के ही रहेंगे, थोड़े लोग गोवा के बाहर रहेंगे, पर आप इस्कॉन मंदिर के संपर्क में आएंगे, कनेक्ट होंगे तो आपको ये माला मिल सकता है। जैसे पिक्चर में दिख रहा है ये माला 108 मणि का माला होता है। इसमें हम महामंत्र का जप करते हैं। ये महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र बोलते हैं, बहुत शक्तिशाली मंत्र है, भगवान का नाम है। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है, नाम नामिनो अभिन्नत्वम। तो इसलिए ये महामंत्र का जप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शक्तिशाली है। हमारे हृदय को जाके शुद्ध करता है, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे हृदय की गंदगी को निकालना है तो कौन सा मार्ग है? भगवान के नाम का उच्चारण। तो इसलिए रोज 5-10 मिनट माला में जप करना। 108 मणि का एक माला, 2 माला। भगवान ने हमको 24 घंटा दिया है, भगवान को कुछ देना तो चाहिए हमको। और हम क्या देख सकते हैं भगवान को? समय। भगवान के नाम का जप करने के लिए समय निकालना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। जैसे पिताजी अपने पुत्र के लिए इतना करते हैं, पुत्र का भी कर्तव्य है पिता के लिए कुछ करना। तो वैसे ही भगवान हमारे लिए क्या-क्या नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन दे रहे हैं, सूरज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है भगवान के लिए कुछ देना, और भगवान के लिए हम समय निकाल के भक्ति के भाव से ये महामंत्र का जप कर सकते हैं। इससे बहुत लाभ होगा। इस्कॉन में इतने सारे लोग आते हैं और अलग-अलग कार्य करके आते हैं, अलग-अलग बुरे आदतों से आते हैं। पर जब व्यक्ति ये महामंत्र लेता है, का जप करता है, उसका हृदय बहुत शुद्ध बनता है। हम सब वाल्मीकि मुनि की कहानी जानते हैं। वाल्मीकि मुनि जो रामायण लिखते हैं, पहले वो एक डकैत थे। उनका नाम था रत्नाकर। पर वो राम का नाम का जप करते हैं निरंतर, राम 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 राम। ऐसे करते करते महान ऋषि बनते हैं। तो जो सिनर है, जो पापी है, साधु कब बनेगा? जब महामंत्र का आश्रय लेगा। एंड फाइनली डी, चौथा जो खाना है सात्विक होना चाहिए और शाकाहारी होना चाहिए, और उसके साथ साथ भगवान को अर्पण किया हुआ खाना। इसका एंड होता है प्रसाद के साथ। पर क्योंकि ये सॉरी तो क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन है, हम प्रसाद तो नहीं दे पाएंगे आपको, पर प्रसाद का तो दर्शन मिल रहा है आपको स्क्रीन में। तो ये प्रसाद स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं तो क्योंकि शरीर है, शरीर को भी मेंटेन करना है, तो भगवान अपना प्रसाद देते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है? भगवान की कृपा। तो प्रेम से भगवान को बना के बिना प्याज लहसुन, जो शाकाहारी खाना है, तुलसी डाल के हम भगवान को अर्पण करेंगे। वो खाना जब हम स्वीकार करेंगे उसको बोलते हैं प्रसाद। इससे व्यक्ति का जो शरीर भी स्वास्थ्य होता है, स्वस्थ बनता है, और मन और आत्मा भी शुद्ध बनता है। सो दिस इज द 4 थिंग्स। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट। तो इसलिए हम भक्तों के संग में रहेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था, अब सब लोगों के पास ये बहुत सुनहरा अवसर है भक्तों के संग में जुड़ने का। घर में बैठे-बैठे ये ऑनलाइन सेशंस में वीकली क्लास अटेंड कीजिए। दूसरा, पुस्तक पढ़िए, गीता खोल के पढ़िए। भगवान ने गीता हम सबके लिए बताया है। गीता में निश्चित रूप से हमारा जो ज़िंदगी के समस्याएँ हैं, उसका सॉल्यूशन, निवारण मिलेगा। तीसरा है चैंटिंग, जप करना, और चौथा है प्रसाद स्वीकार करना। तो दीज़ आर 4 वेरी इंपोर्टेंट प्रिंसिपल्स। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के ये 4 सेशंस आए। सो वेरी, वेरी ग्रेटफुल। आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मुझे पता है, और आप सब लोगों का प्रश्न भी बहुत इंटेलिजेंट है। पर हमारा ये एक ही आशा है कि ये कोर्स, ये जो जर्नी है, यहाँ पे समाप्त न हो, पर इसके बाद हमारा जो जर्नी है एक्चुअली शुरू हो जाए। तो हम सब आशा करते हैं कि जो आगे के सेशंस हैं, उसमें भी आपको देखने का अवसर मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ प्रश्न है? इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, you all can raise your hands and then we can try to answer.
किसी का कुछ प्रश्न है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, हम अनम्यूट करेंगे आपको। या So thank you for the informative session. या माय प्लेजर। Sir, I have asked one question in the chat box. रियली आई डिडंट सी इट। आपका कौन सा क्वेश्चन था? यहाँ दिख नहीं रहा है। आई एम नॉट एबल टू सी योर क्वेश्चन। सोनिया जी। Yes, sir. Sir, I am asking it now. So Yeah. in Hindu religion, during menstrual period, ladies are not allowed to worship God. Does it mean that women are supposed to remain disconnected from God during this period? Absolutely not. क्योंकि वो पीरियड में सिर्फ जिनके घर में विग्रह है, भगवान के जो विग्रह है, उसका पूजा जो पुरुष है वो कर सकते हैं। पर जो जप है, भगवान का जो हरि नाम का जप है, वो गीता पढ़ना, वो सब आराम से कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। Thank you, sir. या एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कुछ प्रश्न है? या या अनुपा नाइक। या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट कर सकते हैं आप, अनुपा नाइक। हाँ जी, हरिओम। या एम आई ऑडिबल? या वी कैन हियर यू। या ओके। मेरा क्वेरी था, मेंस्ट्रुअल, जैसे लेडीज को मेंस्ट्रुअल होता है ना, तो ये कहते हैं कि तुलसी जो होती है ना, तुलसी माँ, तो वो तुलसी के पत्ते जो पूजा के लिए लिए जाते हैं, वो लड़कियां या औरतें नहीं तोड़ सकती। या सही है वो। अच्छा, या ओके। तो वो पूजा के लिए होते हैं ना, तो इस वजह से तोड़ नहीं सकते, या कुछ और भी कारण है? या जनरली बिकॉज तुलसी भी शुद्ध है, सो वो दिन अवॉइड किया तो अच्छा है। अच्छा, मतलब पीरियड्स के दिन नहीं भी होते हैं तो बोलते हैं कि हाथ मत लगाओ, मत तोड़ो, नहीं ऐसा पूजा नहीं। के लिए है ना? नहीं तोड़ सकते हैं, नो इशू। तुलसी भगवान की सेवा के लिए ही है तुलसी। तो तुलसी जो पत्र है भगवान को निश्चित रूप से अर्पण होना चाहिए, पर सिर्फ वो पीरियड में आप अवॉइड कर सकते हैं बस। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि वुमेन्स के लिए तो नहीं अलाउड है तुलसी को हाथ लगाना। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरा यही क्वेश्चन था। थैंक यू। थैंक यू। या एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, नो क्वेश्चंस। या यस, सुनील जी। हरे कृष्ण जी। यस, हरे कृष्णा। मुझे एक बात जाननी थी सर जी। भगवान का जप हम किस वक्त करना चाहिए अच्छा रहता है? सुबह में, या हम काम करते वक्त भी जप कर सकते हैं? या काम करते हुए भी जप कर सकते हैं, पर एक एक्सक्लूसिव टाइम होना चाहिए जहां पे सिर्फ हम जप करें। हम काम करते हुए क्या होता है, मैं सिर्फ आपको म्यूट करता हूँ। काम करते हुए क्या होता है, हम काम कर रहे हैं पर बैकग्राउंड में भगवान का नाम चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। पर ऐसा एक समय होना चाहिए जहां पे हम बैठ के बहुत फोकस के साथ सिर्फ महामंत्र करें, और कुछ मल्टीटास्किंग नहीं, काम नहीं और जप नहीं, ऐसा नहीं। सम टाइम दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जहाँ पे हम बैठ के पूरा फोकस भगवान के मंत्र पे करें। और कौन सा समय बेस्ट है? सुबह कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, फोकस करना बहुत अच्छा होगा क्योंकि सत्वगुण का वातावरण रहता है। पर अगर संभव नहीं है तो कौन सा भी समय चलेगा। थैंक यू वेरी मच। यस, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कुछ प्रश्न है?
यस, अदिति चौहान। हेलो सर, मुझे पूछना था कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो फर्स्ट ईयर में कॉलेज के ग्रेजुएशन जैसे उन्होंने शुरू किया है 12th के बाद, तो उनका जो ओवरऑल शेड्यूल रहता है दिन का बहुत ऑक्यूपाइड रहता है वो लोग भक्तियों के लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं? तो आप कौन से ईयर में हैं? फर्स्ट। क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग? हाँ। मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, पर आपको लग रहा है कि फर्स्ट ईयर मुश्किल है। आप सेकेंड ईयर जाओगे ना, आपको लगेगा सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से ज़्यादा मुश्किल है। और जब आप थर्ड ईयर जाओगे, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से ज़्यादा मुश्किल लगेगा। और फोर्थ ईयर फर्स्ट 3 ईयर से ज़्यादा मुश्किल लगेगा। और जब कॉलेज छूट के जब आप काम करोगे, तब आपको पता चलेगा जब कॉलेज पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा बिजी होता है लाइफ। और जब परिवार होगा उससे ज़्यादा व्यक्ति बिजी होगा। मतलब ये बहुत बड़ा एक इल्यूजन है, भ्रम है कि हम अभी बिजी हैं, आगे जाके फ्री होंगे। तो कोई भी, हर एक व्यक्ति बिजी होता है, इसके लिए समय निकालना पड़ता है। वी हैव टू रिमूव टाइम। तो जैसा मैं बता रहा था, अ, जब हम किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस पता चलता है, हम समय निकालते हैं। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस्कॉन में आते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं। लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत 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 बिजी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लॉट ऑफ पीपल। पर जब किसी चीज़ का महत्व पता चलता है, व्यक्ति समय निकालता है। और अगर हम गौर से देखेंगे, हमारे पास फुर्सत के बहुत समय होते हैं, व्यर्थ करते हैं हम। हॉनेस्टली हम देखेंगे तो सोशल मीडिया में, इसमें उसमें वी वेस्ट सो मच टाइम। अगर वो सब समय हम बचा सकते हैं, व्यक्ति के पास बहुत समय रहेगा। तो आप, मेरा विनती है आपसे अदिति जी कि आप अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जैसा बढ़ेगा और टाइट होगा। सो जितना कम उम्र में ये प्रैक्टिस लगेगा, आदत बनेगा भक्ति, देन इट विल बी ईजियर इन लाइफ। इज इट ओके? यस सर, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। सुनील वाडेकर जी। हाँ, आप बताइए। Namaskaram. नमस्कार। You said in Karma Yoga, the akarma is the final step. And you said akarma is the karma which is not giving the result. Is it the way I understood or how it is? No, see, there are 3 types of karma. The Shastras explain. Karma, vikarma, akarma. 3 things: karma, vikarma, akarma. Karma is means good work. आप अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। विकर्म इज बैड वर्क, बैड एक्टिविटीज। बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अकर्म इज न्यूट्रल एक्टिविटीज, जो कार्य करने से अच्छा फल भी नहीं, बुरा फल भी नहीं, बल्कि जो पिछले जो फल हैं वो भी मिट जाते हैं। क्योंकि अच्छा फल मतलब बेसिकली अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको अच्छा फल प्राप्त करने के लिए एक शरीर लेना पड़ेगा। जैसा राजा का शरीर होता है या रईस का शरीर होता है, उन्होंने शायद अच्छा कर्म किया होगा। पर अकर्म करने से, अकर्म का मतलब है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करने से ये दुनिया के कर्म में हम फंसते ही नहीं है, बल्कि जो भी हमने कर्म किया है वो सबसे हम छुटकारा पाते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन भी झगड़ा कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, और दुर्योधन भी युद्ध कर रहा था। पर दुर्योधन के युद्ध को अकर्म नहीं बोलते, क्योंकि दुर्योधन युद्ध कर रहा था अपने स्वार्थ के लिए, उसको चाहिए था राज्य। पर अर्जुन युद्ध कर रहे थे भगवान की संतुष्टि के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। इसलिए कार्य तो वही था। दोनों, अर्जुन और दुर्योधन, वही गुरुकुल में पढ़ के आए हैं, पर अर्जुन को भक्त माना जाता है, दुर्योधन का नहीं, क्योंकि अर्जुन गीता के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान की संतुष्टि के लिए। सो दिस इज कॉल्ड अकर्म। तो कर्म और अकर्म में फर्क है कि कर्म अपने स्वार्थ के लिए होता है और अकर्म भगवान के संतुष्टि के लिए होता है। इज इट ओके सुनील जी?
one thing here. Yeah. Suppose somebody is working and taking the salary. Is Correct. that his karma is a karma, or because he has been paid, so that it cannot be the a karma, it is a karma only? या अगर कोई काम कर रहा है और सैलरी ले रहा है, पर वो सैलरी का उपयोग क्या करता है, सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहा है, तो वो कर्म है। पर वो सैलरी से भगवान की भक्ति कर रहा है, यू नो, जो भगवान की सेवा में उपयोग कर रहा है वो सैलरी को, देन इट इज अ कर्म। सो जस्ट वो कार्य, जैसे मैं बता रहा था, युद्ध करना कर्म कर्म नहीं होता, या जॉब करना कर्म कर्म नहीं होता। कार्य पे डिपेंडेंट नहीं है, किसके लिए कर रहे हैं हम। वो सैलरी से हम अपने स्वार्थ के लिए एंजॉय कर रहे हैं या भगवान के सेवा में यूज कर रहे हैं, उसको उस पे निर्भर है। Is it okay? Yes. Very much okay. Thank you. Thank you. नमस्कार। नमस्कार। और किसी का कुछ प्रश्न? I think we have had enough questions. ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप सब लोगों को। आप सब लोग आपका कीमती समय निकाल के आए, वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल। तो आप ग्रुप्स में हम ओपन करेंगे, आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है, सो देन यू ऑल कैन ज्वाइन फॉर दी वीकली क्लासेस दैट वी विल डू। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, आप सब लोगों के ऊपर निर्भर है, आप में से कितने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन वी आर रेडी टू ऑफर आवर सर्विसेज। सो वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।